Hello everyone. So this is the very first video of our English grammar series and we are starting this series with this topic voices, active voice and passive voice. So आपकी जो भी queries हैं, जो भी आपके doubts हैं और if you are having any question in your mind, just go to the comment box and drop the comment in that comment box and I'll try to answer them one by one जितने भी हो सकते हैं. I'll try my level best to answer your questions, your doubts and your queries. So this video is all about voices. So first हम समझने की we'll try to understand what basically is voices. Voices means active voice and passive voice. तो होते क्या हैं ये active and passive voice? Use क्या है इनका? Active sentence and passive sentence. So to understand this concept in a better way, in a sophisticated way, you must be aware of helping verbs. So I have mentioned all the helping verbs that are used in the tenses frequently. जितने भी tenses हैं, उन सभी के types में कौन-कौन से helping verbs हम use करते हैं. So the first tense है that is present tense. प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द फर्स्ट टाइप, देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसे हम बोलते हैं. एंड द थर्ड टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसका कोई यूज नहीं है वैसे वॉइसेस में. देन मूविंग ऑन टू द पास्ट. पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं. Past indefinite, past progressive, past perfect and past perfect continuous. Then moving on to the future indefinite, future tense. तो future के भी 4 parts हो गए. First would be indefinite and the second one would be progressive. आप इसे progressive कहो, continuous कहो, both are same and both are acceptable everywhere. Then future perfect and then future perfect continuous. Okay. The most important thing is that आप voices सीखें, direct indirect speech सीखें, narration सीखें, या आपको अगर अपने tenses पे भी command को अच्छी करनी है, you want to hold a good command over tenses, voices, narration, तो आपको सबसे पहली चीज जो अपने mind में रखनी है, that is to have a command over helping verbs. Helping verbs पे जब तक आपकी command नहीं होगी, you won't be able to learn voices, narration और tenses. कुछ भी नहीं आने वाला. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स को सीखेंगे. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड इज डू और डज. ओके. देन मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस. इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर. एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज एंड हैव. देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन and have been. It's very easy. It's as simple as that to learn these helping verbs. Moving on to the present, past. The past indefinite में we use did and then past progressive or past continuous we use was, were, and then past perfect we use had. It's had. Then past perfect continuous we use the helping verb had been. Moving on to the future tense. फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा दैट वुड बी विल. एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी. अभी के लिए हमें शैल को भूल जाना है. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं विल शैल दोनों होता है और इसमें विल भी और शैल भी होता है. नो. फॉर दिस टाइम यू हैव टू कीप ओनली वन थिंग इन योर माइंड एंड दैट इज विल. कि विल को हमें लेकर के कंटिन्यू करना है. एंड देन फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव and future perfect continuous में helping verb होगा will have been. So अब यहां तक तो हमने देख लिया है. So far we have covered helping verbs कि इन सभी tenses के helping verbs क्या होते हैं. As I told you at the beginning of the video कि जब तक आप helping verbs को नहीं मगअप करोगे you won't be able to understand this concept in an easy way. तो अभी हम देखते हैं कि जब भी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते कैसे हैं. तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका कन्वर्जन हम करते हैं
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। इसका जब भी कन्वर्जन होगा, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, तो आप उसको पैसिव कन्वर्जन में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करेंगे। ओके, देन मूविंग ऑन टू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस है एंड यू आर टोल्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वन, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट प्रोग्रेसिव। तो ये एरो मैंने ऐसे डाउनवर्ड एरो यहाँ पे ड्रॉ किया सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहां से ये कन्वर्ट होगा पास्ट प्रोग्रेसिव में। लाइकवाइज फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस इफ यू आर गिवन टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव फॉर्म, तो उस केस में भी यही हम करेंगे कि इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करेंगे। सो यहां भी अगेन आई एम मेकिंग अ डाउनवर्ड एरो। यहां तक की बात तो क्लियर है आई एम श्योर। ओके, मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो उसके जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही करते हैं, उनका कन्वर्जन किसी भी अदर सेंटेंस में नहीं होता है। इट कन्वर्ट्स इनटू इटसेल्फ, इसी में ही होगा इसका कन्वर्जन। इसमें सिर्फ एक मेजर डिफरेंस ये है कि बीइंग का हम एडिशन कर देते हैं, प्लस being, B-E-I-N-G, it's simply being is added in it. Likewise past progressive में भी वही होता है कि past progressive में भी हम इसका जो conversion करते हैं, you know what, past progressive का कोई भी sentence आपको मिलता है like he is writing a letter or the tiger is chasing the deer, तो ये सब was chasing the deer, तो ये जो भी सेंटेंसेस हैं ये पास्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस हैं, तो इनका कन्वर्जन इसी टेंस में होगा इटसेल्फ। और यहां भी हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग, वी विल ऐड बीइंग ओवर हियर। मूविंग ऑन टू द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। सो फ्यूचर प्रोग्रेसिव देयर आर बेसिकली 4 टेंसेस जिनका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। दैट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस, then present perfect continuous, and then past perfect continuous and future perfect continuous। तो ये 4 ऐसे हैं, this one, this one, this one and this one। These 4 tenses they don't get converted into any passive voice। passive में इनका conversion possible ही नहीं है, इनका होता नहीं है। Okay, moving on to this tense present perfect। अब प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका कन्वर्जन डायरेक्टली किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां भी एक डाउनवर्ड एरो मैंने बना दिया, देयर इज आल्सो डाउनवर्ड एरो। अब यहां पे देखते हैं पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को हमें अगर पैसिव कन्वर्जन करना है तो डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड देम। फ्यूचर परफेक्ट को करना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट को करेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? तो इसका हो गया इसमें कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन इसमें हो जाएगा एंड इसका कन्वर्जन इसमें हो जाएगा। एंड ये जो 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका कन्वर्जन तो होता ही नहीं है अलोंग विद दिस वन, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो इनका तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अभी हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को लेकर के कि इनका कन्वर्जन हम करेंगे कैसे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यू हैव टू लर्न ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, बिल्कुल मगअप होना चाहिए। That must be by heart by you people, तभी आप इसका कन्वर्जन कर पाएंगे। Other than it would be like a Herculean task. Okay. Let me quickly rub the board. Okay. Let me write down a sentence first. The tiger chases the dog. The tiger chases the dog. So
चेज मीन्स पीछा करना. सो द टाइगर चेजेस द डॉग मीन्स जो टाइगर है वो कुत्ते का पीछा करता है, डॉग का पीछा करता है. तो ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, चेज है, और चेज में हमने एस ऐड कर दिया है. द टाइगर चेजेस द डॉग, जो टाइगर है वो डॉग का पीछा कर रहा है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वन. तो मैंने आपको अभी जो टेबल ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनका कन्वर्जन किस में होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर. ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट पार्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब एंड दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट पार्ट. ओके, अब पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉग. द डॉग इज द सब्जेक्ट नाउ, इट बिकम्स सब्जेक्ट नाउ. इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट था बट हियर इट बिकम्स द सब्जेक्ट, द डॉग. अब इसका कन्वर्जन हम करेंगे तो ये होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. एंड डॉग, द डॉग, एक डॉग की बात हो रही है तो द डॉग, और डॉग के साथ क्या आ जाएगा, इज, एम, आर. इज, एम, आर में से डॉग के साथ क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इज ही जाएगा. तो द डॉग इज. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, जो जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ वॉइसेस, इज दैट वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. तो मेन वर्ब की हमेशा हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म. क्लियर? तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, चेज्ड हो जाएगी. तो द डॉग इज चेज्ड बाय द टाइगर, बाय द टाइगर. सो ये इसका हो गया पैसिव कन्वर्जन. द डॉग इज चेज्ड बाय द टाइगर. ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में बोलूं, द टाइगर चेज्ड द डॉग, द टाइगर चेज्ड द डॉग, तो अब हम उसका भी देख लेते हैं कि हम उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे. एंड लेट मी रिमूव इट. हाँ, चेज्ड, द टाइगर चेज्ड द डॉग. अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बिकॉज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द टाइगर, वर्ब क्या है, चेज्ड, एंड द मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब है चेज, चेज की सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है चेज्ड. तो चेज्ड सेकंड फॉर्म हो गया द डॉग. तो हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास एज पर द रूल, एज पर द टेबल जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी जो सेंटेंस होगा उसका कन्वर्जन किस में होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा. तो पास्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है was एंड were. और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द डॉग. तो द डॉग को हमने पहले लिखा, द डॉग. अब डॉग एक है तो डॉग के साथ हमेशा क्या जाएगा, was और were. इट ऑब्वियसली इट वुड बी was. द डॉग was, द डॉग was. हाँ, अभी ये जो वर्ब है चेज, चेज की जो बेस फॉर्म है वो चेज है. इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म हम बोलते हैं कि इसका चेज होता है. सेकंड फॉर्म वुड बी चेज्ड, थर्ड फॉर्म वुड बी चेज्ड एंड आईएनजी फॉर्म वुड बी चेजिंग. तो अब हमने इसका थर्ड फॉर्म यहां पे लगा दिया चेज्ड. सो ये हो गया क्या, द डॉग वॉज चेज्ड बाय द टाइगर, बाय द टाइगर. यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है कि द डॉग वॉज चेज्ड बाय द टाइगर. ओके, मूविंग ऑन टू द फ्यूचर पार्ट. अब अगर इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर टेंस में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, द टाइगर विल चेज द डॉग, द टाइगर विल चेज द डॉग. तो यहां पे मैंने ऐड कर दिया
द टाइगर, द टाइगर विल चेज द डॉग। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी एज पर द टेबल कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसका कन्वर्जन किस में होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में उसका कन्वर्जन होगा। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल बी इज यूज्ड। ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, सभी के साथ हमें विल का ही यूज करना है। तो यहां पे अब क्या होगा, कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द डॉग। सो द डॉग ओके। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। विल बी इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द डॉग विल बी, एंड मेन वर्ब क्या है हमारा, चेज, और चेज की थर्ड फॉर्म वुड बी चेज्ड। सो द डॉग विल बी चेज्ड बाय द टाइगर। It's as simple as that. The dog will be chased by the tiger. अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अगर कोई सेंटेंस हमें मिल जाए, इसी सेंटेंस को हम लेकर के देखते हैं कि वो उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। ओके, तो अभी यहां तक हमने देखा द टाइगर विल चेज द डॉग, और इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करके अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, द टाइगर इज chasing the dog. The tiger is chasing the dog. अब ये जो टाइगर है वो उस कुत्ते का पीछा कर रहा है। क्यों कर रहा है, ऑब्वियसली खाने के लिए कर रहा होगा वो, बिकॉज टाइगर क्या है, बीस्ट ऑफ प्रे है, शिकार करने वाले जानवर होते हैं ये, तो वो उसका क्या है, प्रे है, which is why he is chasing him. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनका किसी भी अदर टेंस में कन्वर्जन नहीं होता है, और हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं, सिंपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है द डॉग, तो ये हो गया द डॉग इज। This helping verb will remain same. It will not change. This will not change. It will remain same. तो ये क्या हो गया, is. The dog is. Obviously एक डॉग है, एक ही कुत्ता है, तो उसके साथ हम आर या एम तो लगाएंगे नहीं, is ही लगाएंगे। The dog is being chased. Again, third form of the main verb. So the dog is being chased by the tiger. Simple. It's not tricky that much. It's not that much tricky. So the dog is being chased by the tiger. Simple. Moving on to the next tense. अब जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमने देख लिया इसको, लाइकवाइज पास्ट प्रोग्रेसिव में भी कन्वर्जन होगा पैसिव में। तो पास्ट में इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि कैसे होगा वो। तो पास्ट जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज एंड वर। ओके, तो यहां पे मैंने कर दिया वॉज, द टाइगर वॉज चेजिंग द डॉग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट है द डॉग, तो द डॉग को मैंने यहां पे पहले से लिख दिया द डॉग, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस हेल्पिंग वर्ब विल रिमेन सेम, ये एज इट इज यहां पे क्या होगा, लिख दिया जाएगा। द डॉग वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। सिंपल, द डॉग वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। जो कुत्ता था उसका पीछा किया जा रहा था। कौन कर रहा था, द टाइगर। टाइगर उसका पीछा कर रहा था, उसको चेज कर रहा था। ओके, तो ये तो हो गए। मूविंग ऑन टू द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। फ्यूचर अलोंग विद 3 मोर टेंसेस। कौन कौन से हैं वो, गिव इट अ शॉट। उनमें से कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करके
लिख देती हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. द टाइगर हैज चेस्ड, द टाइगर हैज चेस्ड, CHASED, chased the dog. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, विच इज वाई हमने यहाँ पे चेस्ड कर दिया है. द टाइगर, और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है यहाँ पे, हैज, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज हैज. तो द टाइगर हैज चेस्ड द डॉग. अब इसका हमें कन्वर्जन करना है पैसिव में. तो पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट है द डॉग, द डॉग को हमने पहले लिख लिया एज ऑलवेज, और यहां पे हम कुछ करेंगे माइनर चेंजेस. एंड व्हाट आर दोज माइनर चेंजेस, लेट्स लुक एट देम. द डॉग, अब ये जो हैज है ये तो वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट परफेक्ट के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका कन्वर्जन हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन. तो द डॉग के साथ क्या जाएगा, हैज, ऑब्वियसली हैज ही जाएगा. द डॉग हैज बीन एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेस्ड, it will remain same. The dog has been chased by the tiger. There is no twist, no rocket science at all. It's as simple as that. Case one, the dog has been chased by the tiger. Okay, moving on to the next tense, which is past perfect tense. So past perfect tense में helping verb use होता है had. Past perfect tense में helping verb use होता है क्या, had. तो हमने यहाँ पे had लगा दिया, helping verb would be had and the main verb chased हो जाएगा. chased क्यों हो गया, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. तो अब ये सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया ये. द टाइगर हैड चेस्ड द डॉग. टाइगर ने कुत्ते का पीछा किया था. तो अब क्या होगा इसमें, अब इसका कन्वर्जन जो होता है पास्ट परफेक्ट का जो कन्वर्जन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में द हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड इज हैड बीन, ओनली हैड बीन. यहाँ पे कहीं हैज या हैव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हैड बीन, सिंपली हैड बीन. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया हैड बीन. The dog had been chased by the tiger. Chased कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कन्वर्जन में, इस पूरे एंटायर कन्वर्जन में कोई भी टेंस हो एक्स वाई जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेंस, यू हैव टू यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें ऐड करना है और वो हमने कर दिया सिंपली. तो the entire sentence would be the dog had been chased by the tiger. Moving on to the next tense, which is future perfect tense. तो future perfect tense में helping verb क्या होता है, will have. Will have उसका helping verb होता है. And again future perfect tense में जो main verb होती है उसकी third form हम use करते हैं. तो इसको मैं मॉडिफाई करती हूं एंड देन वी विल सी द कन्वर्जन. तो द टाइगर विल हैव, तो ये हो जाएगा द टाइगर विल हैव चेस्ड द डॉग. द टाइगर विल हैव चेस्ड द डॉग. तो अभी ये होगा कैसे कन्वर्जन, अब फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी टेंस सेंटेंसेस होंगे उन सब का कन्वर्जन हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज विल हैव बीन. रिपीट आफ्टर मी, इट्स विल हैव बीन. तो अभी इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉग है ऑब्जेक्ट. तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो यहां पे हमने द डॉग लिख दिया और ये जो विल हैव है ये विल हैव से क्या हो जाएगा, विल हैव बीन.
So the dog will have been chased by the tiger. Chased क्यों किया? क्योंकि ये पूरे इस वॉइस का सिर्फ एक रूल है कि कोई भी टेंस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेंस, हमें यूज करना है क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विच इज व्हाई आई एम यूजिंग chased by the tiger. Okay, so what about left tenses, जो 3 बचे हुए हैं और एक फ्यूचर प्रोग्रेसिव? तो 4 तो मैंने आपको ऐसे बताए थे कि जिनका कन्वर्जन तो होता नहीं है, तो उनके केस में हमें वी डोंट नीड टू वरी अबाउट देम. तो सिर्फ इतने बचे हैं जिनका हमें क्या सीखना था? कन्वर्जन सीखना था. तो एक सेंटेंस हम ऐसा लेते हैं और जिसके सभी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड WH टाइप क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे उनका हम कन्वर्जन करेंगे. तो एक मैं बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेती हूं कन्वर्जन करने के लिए. She writes a novel. She writes a novel. She writes a novel. She writes a novel. वो नॉवेल लिखती है. She writes a novel. अब इसका नेगेटिव बनाया हमने तो क्या हो जाएगा? वो she doesn't write a novel. She doesn't write a novel. Write a novel. Next question would be interrogative type question. So इसका क्या होगा? इंटेरोगेटिव को जब भी हम फॉर्म करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसका जो है वो क्या होगा? पहले आ जाएगा. Does she write a novel? Does she write a novel? And the question mark. The next sentence would be, doesn't she write a novel? Doesn't she write a novel? And WH कैसे बनेगा? WH फॉर्म करने के लिए सेंटेंसेस को, ये जो थर्ड सेंटेंस है, सिंपली इसके आगे हमें क्या ऐड कर देना है? Why does she write a novel? तो ये क्या हो जाएगा? Why does she write a novel? Why does she write a novel? कि वो एक नॉवेल क्यों लिखती है? Why? It might be her passion. उसका पैशन हो सकता है तभी तो लिख रही है वो. It might be her passion, it might be her area of interest, or it might be her one of the hobbies. कुछ भी हो सकता है. Reason could be anything. और इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH में भी नेगेटिव बनेगा. तो ये जो फोर्थ नंबर पे जो सेंटेंस है, इसमें हमें सिंपली ऐड कर देना है why. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? Why doesn't she write a novel? क्योंकि वो एक नॉवेल क्यों नहीं लिखती है? तो ये हो जाएगा why doesn't she write a novel? Why doesn't she write a novel? वो नॉवेल क्यों नहीं लिखती है? ओके, सो अभी मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. She writes a novel. She doesn't write a novel. Does she write a novel? Doesn't she write a novel? Why does she write a novel? And why doesn't she write a novel? तो ये तो हो गया. अब हम इन सेंटेंसेस का पैसिव कन्वर्जन करते हैं कि इनका पैसिव कन्वर्जन कैसे होगा. फर्स्ट सेंटेंस के केस में देखें, शी राइट्स अ नॉवेल, तो इसका क्या हो जाएगा? अ नॉवेल इज रिटन बाय हर. तो इसके सामने मैंने लिखा अ नॉवेल इज रिटन बाय हर, रिटन बाय हर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डजंट राइट अ नॉवेल. तो यहां पे क्या हो जाएगा? अ नॉवेल इज नॉट रिटन बाय हर. तो इस सेंटेंस का पैसिव कन्वर्जन क्या होगा? अ नॉवेल इज नॉट रिटन बाय हर. सिंपल. द नेक्स्ट सेंटेंस इज डज शी राइट अ नॉवेल. वो एक नॉवेल लिखती है क्या? तो
तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ये क्या क्या करेगा, ये पहले आ जाएगा. सो इज अ नॉवेल रिटन बाय हर, इट्स her, simply her, is a novel written by her. Now moving on to the next sentence, doesn't she write a novel? वो एक नॉवेल नहीं लिखती है क्या? तो अब इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, isn't is plus not becomes isn't a novel written by her, and then a question mark. Okay, clear? Next sentence is what? Why does she write a novel? वो एक नॉवेल क्यों लिखती है? तो अब इसका हमें पैसिव कन्वर्जन करना है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, why is a novel written by her, question mark. The next sentence is why doesn't she write a novel? वो नॉवेल क्यों नहीं लिखती है? तो अब इसका हो जाएगा क्या, why isn't a novel written by her, and then a question mark. Clear? So अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें सेंटेंसेस का कन्वर्जन करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. तो आई एम श्योर कि अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जन कैसे करना है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव? जब आपसे कोई एक्टिव एंड पैसिव के डेफिनेशन पूछता है तो यू जस्ट कीप मम, you hesitate or you don't feel comfortable to answer the question. Why? Because you don't get the answer. आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें. So अब इधर साइड जितने भी sentences लेफ्ट साइड में हैं, all of them are active sentences and these are passive sentences. तो अभी now just observe these sentences and let me know in the comment box what kind of thoughts you are getting by observing these sentences. क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों को कंपेयर करने पे? सो इसमें हमें पता चल रहा है क्लियरली कि काम को कर कौन रहा है, हु इज द मेन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग ऑल दीज टास्क. जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में तो हमें पता चल रहा है कि वो लड़की है, वो नॉवेल लिख रही है. बट पैसिव में जब तक हमने बाय के बाद हर नहीं ऐड किया है तब तक ये गेस करना मोर और लेस इम्पॉसिबल है कि काम को किया किसने है. जैसे यहाँ पे अ नॉवेल इज रिटन बाय हर, अगर मैं सिंपली इसको ऐसे बोलूं कि अ नॉवेल इज रिटन मींस नॉवेल लिखा गया, अ नॉवेल इज रिटन, अ नॉवेल लिखा जाता है, नॉवेल सिर्फ लिखा जाता है. इस सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, नॉवेल लिखा जाता है. बट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि किसने लिखा है, कौन लिख रहा है, हु इज परफॉर्मिंग द टास्क. तो तब तक तो यहाँ पे आपके लिए भी ये चैलेंजिंग होगा फाइंड करना, फिगर आउट करना कि किसने लिखा है. बट एज सून एज आई मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे उस पर्सन का नेम मेंशन किया बाय हर, तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया, ये क्लियर हो गया कि वो लड़की, उसी के द्वारा ये सब क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है. बेसिकली शी इज द गर्ल हु इज राइटिंग दिस नॉवेल. तो अगर जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एक्टिव एंड पैसिव की, तो सिंपली आपका आंसर होना चाहिए कि एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है दैट इज प्रेजेंट, सब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है. और पैसिव में हमें यही नहीं पता चल पाता है कि काम को कर कौन रहा है. बेसिकली दैट पर्सन इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस. जब तक आप उसको मेंशन ना करना चाहो बाय लगा करके. तो अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी सेंटेंस, काइंडली ड्रॉप दैट सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. तो अभी हम एक और सेंटेंस को लेकर के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि
और इस पे हम अपनी बेटर कमांड कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि while learning active and passive voice आपको प्रीपोजिशन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन हमेशा उस मेन वर्ब के साथ लगा ही रहेगा। जैसे मैं बोलूं सिया इज लाफिंग एट रोहन, सिया इज लाफिंग एट रोहन, सिया इज लाफिंग एट रोहन, सिया रोहन के ऊपर हंस रही है। ओके, तो अभी तो ये एक्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कौन है जो हंस रहा है और किसके ऊपर हंस रहा है। तो अब इसका हमें पैसिव कन्वर्जन करना होगा। तो पैसिव कन्वर्जन करने के लिए सिंपली हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लिखेंगे। तो सेंटेंस में क्या होगा, रोहन, एट नहीं होगा, दिस एट विल नॉट बी इन द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये जाएगा सबसे पहले रोहन। तो रोहन को हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे, रोहन। अब रोहन के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अभी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है, और इसका जब हम पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही उसका कन्वर्जन होगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कन्वर्जन करने के टाइम पे अब रोहन इज अ सिंगल पर्सन, तो रोहन के साथ ऑब्वियसली इज जाएगा, रोहन इज। और इज के साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बीइंग का हम एडिशन करते हैं इसमें, तो रोहन इज बीइंग। अब यहां पे मेन वर्ब क्या है, लाफिंग। लाफिंग का जो बेस फॉर्म होता है दैट इज लाफ, हंसना। सेकेंड फॉर्म वुड बी लाफ्ड, थर्ड फॉर्म वुड बी लाफ्ड। तो यहां ये जो आईएनजी फॉर्म में अभी आपको दिख रहा है, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड एट। इसी एट को आपको स्किप नहीं करना, ये हमेशा इसके साथ जाएगा ही जाएगा, लाफ्ड एट। सो रोहन इज बीइंग लाफ्ड एट, उसके बाद आप बाय ऐड करके सिया कर सकते हैं। इट्स एज क्लियर, एज सिंपल एज दैट। रोहन इज बीइंग लाफ्ड एट बाय सिया, रोहन के ऊपर हंसा जा रहा है। अब कौन हंस रहा है, जब तक आप बाय सिया को नहीं मेंशन करेंगे तब तक यहां पे आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि कौन हंस रहा है। आप इसको अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि रोहन का मजाक उड़ाया जा रहा है, रोहन का मजाक उड़ाया जा रहा है, यस। तो रोहन इज बीइंग लाफ्ड एट। तो इस तरीके से हम करेंगे सेंटेंसेस का कन्वर्जन बाय सिया। यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं, लाफ्ड एट बाय सिया। जैसे मैं बोलूं, एक और सेंटेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, She is staring at me. She is staring at me. वो मुझे घूर रही है। स्टेयरिंग, स्टेयर मीन्स होता है क्या, घूरना। तो she is staring at me, वो मुझे घूर रही है। तो यहां भी आप देख रहोगे कि आर्टिकल का यूज हुआ, सॉरी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, at। तो she is staring at me। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, me। सो यहां पे हम इसको लिखेंगे जब इसका पैसिव कन्वर्जन करेंगे, सो दिस मी विल बी कन्वर्टेड इनटू आई। तो इसको हमने स्टार्ट किया आई से, आई। और ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस का कन्वर्जन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही होगा। तो यहां पे हमने आई के बाद क्या ऐड करना है, इज, एम, आर। इन तीनों में से हम ऐड करेंगे एम को। ऑब्वियसली आई के बाद एम ही आता है, सो आई एम। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम क्या लिखते हैं, बीइंग। आई एम बीइंग। अब स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड। तो STA, स्टेयर्ड बाय, स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड एट। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रीपोजिशन को स्किप नहीं करना है, उसको इसके साथ में ही लेकर के चलना है। जैसे ही आपने प्रीपोजिशन का सीक्वेंस चेंज किया, योर ऑल एफर्ट्स विल बी नलिफाइड, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये तो लास्ट में आना चाहिए,
बट एक्चुअली ये जिस वर्ब के साथ है ये उसी के साथ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग स्टेयर्ड एट बाय हर. आप इसको ऐड कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें, इट्स ओके. बट ये आप इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते हैं. आपको इसको इसके साथ में लगाना ही लगाना पड़ेगा. सो होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. फर्दर while solving the questions, if you find any difficulty, आप comment box में उसको comment करिए. I'll try to answer all your questions as much as possible. So this was the entire concept of passive voice. फर्दर की वीडियोस में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि सीजीएल और सीएचएसएल जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी वनडे एग्जाम्स में कवर किए गए हैं, वी विल ट्राई टू कवर देम अप. उन सबको सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि और क्या क्या इसके अंदर हम लर्न कर सकते हैं.